हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड हरे कृष्णा। हरि बोल। दरवाजे बंद कर दिए। ओके। या तो last time we discussed that the purpose of all Vedic literature is to understand Lord. तो ये Hare Krishna. So last time we were discussing that purpose of all the Vedic literature is to understand Krishna. And तो सभी वेदों का जो कंक्लूजन वो यही है कि कैसे हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं, है ना। सर्वस्व चामेति सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक रुके थे। उसके बाद में थ्री डिवीजन ऑफ द वेदास, आज इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? तो मुझे आप मतलब इसे प्रीवियस क्लास में बोले थे कि आज वो 6 और 7 पॉइंट को लेकर आप हाँ, मैं वेदांत सूत्र के विषय में बताऊंगा, मैंने बताया था। तो पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थ्री डिवीजन ऑफ वेदास, उसके बाद उस पे आते हैं। इसको पढ़िए। The three division of the Vedas. The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual. But such knowledge aims at perfection and self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. The specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent man, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the department military education, which is called the Dhanurveda, was also taken up by the such intelligent man, and the Vipras were also teachers of this. हरे कृष्ण। The Vipras were also teachers of this section of knowledge, as well like we said, Dronacharya, Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned herein is significant. There is a little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in karma kanda or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. ओके एक मिनट। सबसे पहले तो बताया कि वेदा इज द स्टोर, वेदास आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, जिस जो तो ज्ञान की दो श्रेणियां होती है। एक को कहते हैं अपरा विद्या, एक को कहते हैं परा विद्या। इंफीरियर नॉलेज एंड सुपीरियर नॉलेज। नॉलेज पर्टेनिंग टू दिस वर्ल्ड, knowledge pertaining to this body is called inferior knowledge, and knowledge pertaining to spiritual reality, knowledge pertaining to soul is called paravidya या superior knowledge. तो वेदों में दोनों है, अपराविद्या भी है, इस संसार के ज्ञान भी है, और साथ साथ में आध्यात्मिक विषय वस्तु का ज्ञान भी है। समझ रहे हैं? वेदास इज कंप्लीट, इट हैज बोथ मंडेन knowledge, knowledge that is pertaining to this world, जैसे एग्जांपल दिया गया है एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आयुर्वेदा, ये सब मिलिट्री एजुकेशन,
So all this comes under the category of aparavidya, which is pertaining to this world. How to live in this world, how to execute your duties, what are the different sciences, all are covered under this category. But then there is a higher understanding of the Vedas as well, which deals with the spiritual subject matter. तो वेदों में दोनों है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विप्र शब्द और ब्राह्मण शब्द में थोड़ा सी पार्थक्य है, थोड़ा सा डिफरेंस है। विप्र आर कंसिडर्ड टू बी experts in कर्मकांड और fruitive activities, and brahmanas are considered to be they are expert in spiritual knowledge of transcendence. तो अपरा विद्या में जो पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, दे आर कॉल्ड विप्र, और परा विद्या में जो पारंगत है, दे आर कॉल्ड ब्राह्मणास। ब्रह्म जनाति थी ब्राह्मण। यस, पढ़िए आगे। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? So, या अंकित प्लीज। where do I start from? I'll start from the paragraph or I'll The word continue. Vipra, you can start No, from no. But he said that Okay. he said this department of somewhere. Done. I'll start from here then. Yeah. This department of knowledge is called Janana Kanda, and above ज्ञान कांड। Gyan Kanda, Yeah. and above this there is a Upasana Kanda. उपासना कांड। Yeah. Upasana Kanda. The culmination of Upasana Kanda is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Yeah. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas is the Vishnu of Elevated Brahmanas are Vaishnavas engaged in transcendental loving service of the Lord. And thus, Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to Vaishnavas, as explained in the beginning of Srimad Bhagavatam. तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि there are 3 sections of the Vedas. One is called the Karma Kanda section, second is called the Jnana Kanda section, and third is called the Upasana Kanda section. So there are 3 sections of the Vedas: Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. तो ये क्या होता है, थोड़ा सा समझिए इसको। कर्मकांड deals with the fruitive activities. If you'll do certain activities, you'll get certain kind of results. That is called Karmakanda section of the Vedas. But then how one is gradually going from the Karmakanda section to the Jnanakanda section. तो यहाँ पे बताया जाता है कि if somebody is engaged in fruitive activities, Karmakand, then what happens? He does some work. वो कुछ काम करता है जिससे वो he wants to become happy. भाई कर्मकांड व्यक्ति क्यों करता है? मैं I'll do certain activities and I'll enjoy the results of those activities. मैं उन फलों को भोगूंगा। तो इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो किसी फ्रूट की आशा के साथ की जाती है, जो किसी फ्रूट की आशा के साथ की जाती है, इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो कर्मकांड के अंतर्गत क्या आता है, या फ्रूटिव एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या आता है कि एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फ्रूट्स, इट इज कॉल्ड कर्मकांड। अच्छा, अब क्या होता है कि व्हेन समबडी इज परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल, वो क्या चाहेगा कि इसके हमेशा मीठे फल हों। हम पेड़ लगाते हैं किस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि भाई फल मीठे होने चाहिए, यानी फल हमारे फेवरेबल होने चाहिए। लेकिन व्यक्ति देखता है इन ड्यू कोर्स ऑफ हिज जर्नी कि भाई हमेशा फल मीठे नहीं होते हैं, कभी कभी फल कड़वे भी होते हैं।
या I am aspiring for happiness, I am aspiring for positive results, but not always I am getting it. Sometimes negative results are also coming, sometimes failures are also coming, and sometimes unhappiness is also coming. तो फिर व्यक्ति एक मतलब एक इस तरीके से आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम व्यक्ति सोचने लगता है कि यार आई एम एस्पायरिंग फॉर हैप्पीनेस बट व्हाई आई एम गेटिंग डिस्ट्रेस, आई एम एस्पायरिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स, व्हाई आई एम गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, एंड देन ही कंक्लूड्स कि दिस पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, डे एंड नाइट, they are all just the two sides of the same coin. तो उसके बाद व्यक्ति सोचता है, देन ही स्टार्ट्स टू थिंक यार मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ फॉर हैप्पीनेस, बट द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज दैट देयर इज ऑलवेज टॉपसी टर्वी, हमेशा उठापटक चलती रहती है, और इसलिए मेरे अनुकूल हमेशा मुझे फल नहीं मिलता. तो जब इस प्रकार व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, देन ही स्टार्ट्स टू थिंक कि व्हाट इज नेक्स्ट, what is the nature of this world, who am I, and what is the purpose of my existence, and how I am connected with this world. So like this, ये जब understanding आती है, ये जब inquisitiveness आती है, that means that person is entering from कर्म कांड section of the Vedas to the ज्ञान कांड section of the Vedas. तब वो कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर प्रवेश कर रहा है. और ज्ञान कांड के बाद में जब सही समझ जाता है who am I and what is my relationship with the supreme, or what is my relationship with this material world, and तो वो समझता है कि I am part and parcel of the Supreme Lord, and my duty is to engage in the service of the Supreme Lord. That means now he is transcending from the Jnana Kanda section to the Upasana Kand or devotional service. समझ आया ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कैसे व्यक्ति कर्म कांड से ज्ञान कांड, ज्ञान कांड से उपासना कांड तक ट्रांसेंड करता है. किसी को इसमें डाउट है? ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? Yes. समझ आइए वाला पॉइंट. अभिषेक, is this point clear? How one transcend from karma kand to the gyan kand? Next पढ़िए आगे. So it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter above the three khandas, namely karma, jnana, and upasana. Among the karma kanda experts, Yes, क्या लिखा है कि भाई भागवतम इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ द वैदिक नॉलेज. तो बताया गया है कि भाई जो ब्राह्मणास, दोज हु आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड आर कॉल्ड वैष्णवास, एंड देयर फेवरेट ग्रंथ इज, देयर फेवरेट बुक इज, देयर फेवरेट लिटरेचर इज श्रीमद् भागवतम. अब वो श्रीमद् भागवतम की विशेषता बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज सुपीरियर सब्जेक्ट मैटर अबव कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड. यानी जहां कर्मकांड शुरू होता है, फिर खत्म होता है, तो फिर ज्ञान कांड शुरू होता है, फिर वो खत्म होता है, फिर उपासना शुरू होता है, खत्म होता है. उपासना का एपिटोम है डिवोशनल सर्विस, और श्रीमद् भागवतम टॉक्स अबाउट डिवोशनल सर्विस ओनली. तो इसलिए इट इज सुपीरियर सब्जेक्ट मैटर अबव थ्री कांड्स. समझ आ गया ये पॉइंट? आगे पढ़िए. so amongst the karma kanda experts, the like we say Jataka expert, Vipras, Jataka, like we say Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a of a born child simply by the astral calculations of the time, Lagna. Such expert Jataka Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit and his grandfather Maharaj Maharaj Udhishthir awarded the Vipras sufficiently with gold, land, villages, grains, and other valuable necessities of life, which also include the cows. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is the duty of the state of maintain them comfortably as designed in the Vedic procedure. Such experts, like I said, Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. या तो विप्रो, तो इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है समाज में. जैसे जातक देखते हैं, मतलब जातक देखना मतलब
जब कोई शिशु का जन्म होता है तो वो भविष्य में क्या करेगा, उसके लिए क्या मार्ग अच्छा रहेगा, है ना, मतलब किस फील्ड में जाने से ठीक रहेगा। तो ये जो ये कौन बताता है, ये एस्ट्रोलॉजर बता सकता है अच्छे से, प्रोवाइडेड वो एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये एक वैदिक नॉलेज है। उस तरीके से जब विवाह होता है तो तो लड़के और लड़की का जो लग्न मिलाया जाता है ना, तो ये भी बहुत जरूरी विज्ञान है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि भविष्य में इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि भविष्य दर्शन का हमारे पास और कोई स्रोत नहीं है, दिस इज द ओनली वे, है ना। तो देयरफॉर दीज आर दी साइंसेस, एंड इस तरह के एक्सपर्ट जैसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स की आवश्यकता है समाज में, इनकी भी आवश्यकता होनी होती है। और इसलिए हाँ, स्टेट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इनकी मतलब इनकी प्रेजेंस को भी अप्रिशिएट करें और उनको सफिशिएंटली पेमेंट करें, उनको उनको कुछ कुछ दे शुड बी व्हाट वी से अवॉर्डेड विद सफिशिएंट, जैसा युधिष्ठिर महाराज के जमाने में होता था कि उनको धन धान्य से परिपूर्ण रखा जाता था। तो वही वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक नॉलेज का प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ओके आगे, ये कर्म कांड के विषय में बात चल रही है, विप्रो के विषय में बात चल रही है जो कर्म के एक्सपर्ट्स हैं। या आगे, So in three departments of human knowledge, is discriminated by the Vedas, namely fruitive इस work. क्या दिस इज Oh, huh. मेनेटेड बाय द Huh. वेदा। So this is mandated by the Vedas, namely fruitive work, which is known as Karma Kanda, transcendental knowledge, Jnana Kanda, and devotional service, Upasana Kanda. Devarshi Narad inherited from his father Brahma devotional service, whereas Daksha inherited from his father fruitive work, and Shanaka and Sanatan, etc., inherited from their father information about Gyanakanda or transcendental knowledge. या इस तरीके से इनहेरिटेड मतलब उन्होंने इस भाई इन सबके पिताजी एक ही है, सब ब्रह्मा जी ही हैं इनके पिता, नारद हो चाहे सनातन 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 कुमार हो, है ना। लेकिन अपने 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 नेचर के हिसाब से इन्होंने ब्रह्मा जी से अलग अलग तरह की नॉलेज डिराइव करी। जो चार कुमार है उन्होंने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या ज्ञान कांड को ड्राइव किया, और नारद मुनि ने भक्ति के ज्ञान को ड्राइव किया, इस तरीके से। यस आगे, In the Vedas, there are three kandas, divisions: Karma Kanda, Gyan Kanda, Upasana Kanda. The Karma Kanda, like is a portion stresses the execution of fruitive activities, but ultimately it is advised that one abandon both Karma Kanda and Gyan Kanda, speculative knowledge, and accept only Upasana Kanda or Bhakti Kanda. One cannot attain love of Godhead by executing Karma Kanda or Jnana Kanda, but by dedicating one's karma or fruitive activities to the Supreme Lord, one may be is relieved from the like is a polluted mind, and becoming free from mental pollution helps elevate one to the spiritual platform. Then, however, one needs the association of a pure devotee, for only by a pure devotees association can one become a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. So when one comes to the stage of a pure devotional service, the process of is a Sravanam Kirtanam is very essential. So by executing the 9 items of devotional service, beginning with Sravanam Kirtanam, one is completely purified. क्या अर्थ हुआ इसका? तीन कांड में कर्म कांड और ज्ञान कांड को से ऊपर उठ करके व्यक्ति को उपासना कांड या भक्ति में आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए? अल्टीमेटली इट इज द पर्पस, है ना। और कोई व्यक्ति अगर किसी प्योर डिवोटी के संपर्क में आता है तो डायरेक्टली वो कर्म कांड ज्ञान कांड से ट्रांसेंड करके उपासना कांड में आ सकता है, सिंपली बाय द पावर ऑफ द एसोसिएशन। ओके, आगे,
The Vedas deal with three departments of activities. One is called Karma Kanda, or activities under Vedic and its injunction, which gradually purify one to understand his real position. The next is Jnana Kanda, the process of understanding the absolute truth by speculative methods. And the third is Upasana Kanda, the worship of the Supreme Personality of Godhead and sometimes of the demigod also. The worship of the demigods recommended in the Vedas is ordered with the understanding of the demigod's relationship to the personality of Godhead. क्या बोल रहे हैं? The Vedas deal with three departments of activities: Karma Kand, Gyan Kand, Upasana Kand. One is called Karma Kand, or activities under Vedic injunction, which gradually purify one to understand his real position. कोई बता सकता है कि कैसे कर्मकांड ग्रेजुअली प्यूरिफाई करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हाउ कर्मकांड ग्रेजुअली प्यूरिफाइज वन, ये कैसे संभव होता है? थोड़ा सा आप कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि कर्म कांड में जो भी हम काम करते हैं वो किसी भी फल के लिए करते हैं, तो वो फल हम किसी भी चाहे देवी देवताओं के लिए करें, वो आते सीधे भगवान से ही हैं। क्या ये इसका अर्थ हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही कि आते तो भगवान से. मेरा प्रश्न ये है कि कैसे कर्मकांड प्यूरिफाई करता है. ये बात सही है, मतलब देवी वो देवता हमारे तो हमारे भगवान अंदर एक से मिलता है अल्टीमेटली, लेकिन कर्मकांड कैसे प्यूरिफाई करता है? अगर वो मतलब इस अगर कोई काम अगर हम लोग मतलब इस भगवान के लिए मतलब उनके लिए करेंगे तो वो शायद कर्म कांड को नहीं, लेकिन मतलब इसे कर्मकांड का तो अर्थ है ना कि हम फलों के लिए काम करते हैं, भगवान के लिए नहीं हाँ, करते. तो अगर जो फल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो अगर भगवान के लिए होगा तो फिर तो प्यूरिफाई हो ही प्रश्न सकता है। है कर्मकांड कैसे प्यूरिफाई करता है? समझिए ना, भगवान के लिए करेंगे तो हो ही जाएंगे, तो क्या इफेक्ट ही है, लेकिन कैसे कर्मकांड प्यूरिफाई करता है व्यक्ति को, ये प्रश्न है. मतलब जैसे कि हम किसी भी काम के लिए किसी इच्छा के लिए कर्मकांड करते हैं और वो अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हमारी उसमें श्रद्धा और बढ़ती जाती है। ओके, तो समझिए आप. श्रद्धा जैसे जैसे ही हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो हम नियम जो भी पालन नियम करना पड़ेगा हम और ज्यादा करेंगे, फिर और श्रद्धा बढ़ेगी और मतलब इच्छाएं जागृत होती जाएगी और वो पूरी होती जाएगी। ऐसे बढ़ते 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 में भी हो सकता है कि हम प्यूरिफाई हो जाए। वेरी गुड, आप काफी क्लोज आ गए हो. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सुनिए ध्यान से, यही यही है कि भाई जब व्यक्ति वेदों के कर्मकांड सेक्शन को फॉलो करता है तो पहले तो क्यों फॉलो करना है? हर व्यक्ति को इंद्रिय तुष्टि करने की आकांक्षा इच्छा है भाई. हम संसार में हम मेटल वर्ल्ड में, बिकॉज वी हैव सेंसेस एंड वी हैव टू सेटिस्फाई वी हैव टू ग्रेटिफाई द सेंसेस. हमें तो इंद्रियों की तुष्टि करनी है. अब इंद्रियों की तुष्टि दो तरीके से हो सकती है, एक लीगली हो सकती है, एक इलीगली हो सकती है. अगर हम वेद के अनुसार इंद्रियों की तुष्टि करते हैं तो वो लीगल है, और वेद के अगेंस्ट में जाके करते हैं तो इलीगल है. तो अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है मतलब वो कर तो इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन वो वेद के संरक्षण में रहते हुए वेदों के आदेशों का पालन करते हुए कर रहा है, इसलिए कम से कम पाप कर्म से तो बच रहा है. तो व्यक्ति दो तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, एक पाप कर्म करते हुए, एक बिना पाप कर्म के. तो कम से कम कोई व्यक्ति अगर बिना पाप कर्म किए इंद्रिय तृप्ति कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है. हम संसार में देखते हैं कि 99% लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पाप कर्म करते हैं, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे नशा हो, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो अवैध संग हो. तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पाप कर्म करना पड़ता है, सर्वविदित है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेदों का आश्रय लेते हुए अगर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो पाप कर्म से बच जाता है, और इंद्रिय तृप्ति भी हो रही है, पाप कर्म से बच रहा है. तो कम से कम कहीं ना कहीं तो उसका उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उसकी चेतना धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि वो वेदों को फॉलो कर रहा है. और वेदों को फॉलो करते 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 और इंद्रिय तृप्ति करते करते, लेकिन फिर जब वो देखेगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, सुखों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन दुख भी मिलते हैं, तो फिर व्यक्ति धीरे 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 जब जानना चाहता है कि भाई मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, तब वो ग्रेजुअली फिर ज्ञान कांड में मतलब और एलिवेट हो गया. फिर ज्ञान कांड के बाद जब उसको कंक्लूजन पता चल जाता है कि भाई कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका पार्ट एंड पार्ट, उनका अंश, उनकी सेवा करना ही एक्चुअली वास्तव में सभी वेदों का लक्ष्य, तो और एलिवेट हो गया. तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? कर्मकांड से हुई. क्यों कर्मकांड से हुई? क्योंकि व्यक्ति भाई
बिना पाप की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और वेदों के आश्रय में कार्य कर रहा है, इसलिए एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट ही इज प्रोग्रेसिंग। समझ आया? पाप कर्म के बिना इंद्रिय तृप्ति करना और वेदों के संरक्षण में रहना, वेदों को पालन करना, वेदों में धीरे धीरे श्रद्धा विकसित करना, ये यानी दोनों चीज हो रहा है। पाप कर्म भी बच रहा है, तीन चीज हो रही है, पाप कर्म भी बच गया, इंद्रिय तृप्ति भी हो गई, और तीसरा वेदों की बात भी मान ली, तो हमारी धीरे धीरे भगवान के शब्दों में श्रद्धा भी बढ़ गई। इसलिए इन तीनों मेथड धीरे धीरे व्यक्ति प्यूरिफाई होने लगता है, और जब अधिक प्यूरिफाई होता है तो फिर वो कर्म कांड से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो ज्ञान कांड में आ जाता है, वो जिज्ञासु हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। जब पूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाता है और सही सही अपना संबंध भगवान से समझ आता है, तो भगवान की भक्ति में लग जाता है। दैट मीन्स नाउ ही इज कंप्लीटली प्यूरिफाइड। ठीक है ना? ओके, चलिए। ओके, अब कोई पूछे भाई वेदों का पर्पस को कैसे डिफाइन करें, तो ध्यान से समझिएगा, एक और सिद्धांत आज हम सीखेंगे। अब वेद के तीन कांड हो गए, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये तीन कांड थे। ठीक है, लेकिन पर्पस ऑफ द वेदास को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, उसको एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है। वो तीन शब्द बताए गए हैं, उसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये तीन से वेदों का पर्पस क्लियर होता है। जैसे समझ लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? क्रिकेट क्या है, कैसे? एक तो आपको पता है, आप खेलते हैं, आपको पता है। अगर आप खेलना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? अब खेलने जा रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा? मतलब इसे कैसे खेलना, उसका जो रूल्स है वो जानना रूल्स पड़ेगा। आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट, अब आपको देखना तो पड़ेगा कि भाई मैं किस टीम में हूँ, मैं इंडिया की टीम में हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ, टीम पता करनी पड़ेगी। अच्छा, टीम भी पता चल गई, अब मेरा रोल क्या है, मैं बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ, कि मैं विकेट कीपर हूँ, कौन हूँ मैं, कि मैं फील्डर हूँ, कौन हूँ मैं? समझ रहे हैं? तो ये जानना कि मैं मेरा इस टीम में क्या पोजीशन है और मैं क्या हूँ एग्जैक्टली, ये होता है संबंध। मेरा क्रिकेट की टीम के साथ, उस टीम के साथ क्या संबंध है, और मैं कौन हूँ, मैं बॉलर हूँ, बैट्समैन हूँ, इसको कहते हैं संबंध जानना। हमारा क्या कनेक्शन है, संबंध मतलब कनेक्शन, तो हमारा उस गेम के साथ क्या कनेक्शन। या दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वो भाई उसको सबसे पहले जानना पड़ेगा मेरा उस कंपनी के साथ क्या संबंध है, मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ, उस कंपनी का सीईओ हूँ, या उस कंपनी का मैं क्लर्क हूँ कि चपरासी हूँ, मैं हूँ कौन भाई, ये तो कहते हैं संबंध। फिर जब पता चल गया व्यक्ति को कि भाई मेरा क्रिकेट मैच में मैं बैट्समैन हूँ, अब करना क्या है, मुझे खेलना है और रन बनाने हैं, तो ये हो गया उसका अभिधेय। खेलना है मुझे, ये हो गया अभिधेय, उसकी ड्यूटी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना? या कोई व्यक्ति अगर पता चल गया मैनेजर है किसी कंपनी का, तो मेरा ये जॉब डिस्क्रिप्शन, मुझे ये सब करना है, इसको कहते हैं अभिधेय। और लास्ट में क्रिकेट मैच में भाई मुझे उद्देश्य क्या है, मुझे ज्यादा रन बनाना है, मुझे जीतना है। इस तरीके से मैं जॉब करता हूँ, मेरा संबंध ये है कंपनी के साथ कि मैं मैनेजर हूँ, अभिधेय ये है, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे ये सब करना है, और लक्ष्य क्या है, मुझे सैलरी चाहिए, है ना? तो ये हो गया प्रयोजन, किस उद्देश्य के साथ ये कार्य किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से वेदों में तीन चीजें दी गई है, क्या क्या? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारे इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, हमारे अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है, इत्यादि, जो कहते हैं संबंध का ज्ञान। संबंध के बाद आती बात कि भाई अब पता चल गया कि मैं कृष्ण का अंश हूं, तो मेरा अभिधेय, अब मुझे करना क्या है, और लास्ट में प्रयोजन, मुझे प्राप्त क्या करना है ना? लास्ट में मुझे प्राप्त क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्रयोजन। समझ आया? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, को पढ़िए जरा, क्या होता है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami that there are three purposes in the Vedas. One is to understand our relationship with Krishna, Sambandha. Another is to act according to that relationship, Avideha. And the third is to reach the ultimate goal, which is called like Prayojana. The प्रयोग, word
The word prayojana means like its necessities, and the ultimate necessity is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Like, it's a prema प्रेम pam परमार्थो महान। prema pamartha mahana. The greatest necessity for a human being is the achievement of love for the Supreme Personality of Godhead. Knowledge of these four items, namely oneself, the universe, God, and their internal relationship, is called Sambandha Gyan, or the knowledge of one's like this relationship. When one's relationship with the Supreme Lord is established, the next program is to act in that relationship. This is called like this Abhideva, or activity in relationship with the Lord. After executing such prescribed duties, when one attains the highest goal of life, love of Godhead, he achieves the is a prajana siddhi, or the fulfillment of his human mission. यस, समझ गए? किसी को डाउट है इसमें कुछ? ये शब्द क्लियर हुए? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो आज आपने एक्चुअली बहुत सारे वोकैबुलरी सीख ली। 3 शब्द ये सीखे, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, और 3 शब्द सीखे, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। वेदों में 3 सेक्शंस हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। और वेदों को पर्पस को समझने की ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 3 लेवल्स हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे इसको। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन गुरुजी है, अभिधेय और प्रयोजन होते और एक बार समझा दीजिए। अभिधेय और प्रयोजन समझा दूं? जैसे कि मैंने बिल्कुल। बताया कि भाई जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की देख रहा है, हम बोलते हैं ना संबंध देखने जा रहे हैं, है ना, तो उसको कहते हैं संबंध। अब शादी हो गई मतलब संबंध स्थापित हो गया। जब संबंध स्थापित हो गया तो अब क्या करेंगे, लड़का लड़की के बीच में आपस में एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाएंगे। ये होता है अभिधेय। लड़का लड़की की सेवा करेगा, लड़की लड़के की सेवा करेगी, सर आपस में उनका प्रेम बढ़ेगा। और प्रयोजन क्या है? पुत्रार्थ क्रियते भार्या, संतान उत्पन्न करना और परिवार को आगे बढ़ाना, ये है प्रयोजन। उसी तरीके से कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो मेरा इस कंपनी से संबंध क्या है? तो भाई मैं यहाँ पे एक स्वीपर हूँ, करना क्या है? सफाई करनी है। प्राप्त क्या करना है? सैलरी प्राप्त करनी है। तो ये हो गया संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। मैं कौन हूँ? कृष्ण का अंश हूँ, ये हो गया संबंध। प्राप्त क्या करना है? कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना है। और कैसे करना है? कृष्ण की भक्ति करते हुए। तो भक्ति हो गई अभिधेय, प्रेम हो गया प्रयोजन, और संबंध हो गया हम कृष्ण के अंश हैं। समझ आया? अभी 99% स्पिरिचुअलिस्ट को ये संबंध का ही ज्ञान नहीं है। तो अभिधेय प्रयोजन तो भूल जाओ। जिसको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है, फिर वो अभिधेय प्रयोजन में कहाँ जाएगा? फिर लक्ष्य को क्या समझेगा? इसलिए इस तरह के तथाकथित स्पिरिचुअलिस्ट से पूछिए जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले जीवन का लक्ष्य बस जियो, कहीं जाना नहीं, बस कहीं नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं है, बस जियो। अरे भाई तो क्यों जिए? उस जीने का पर्पस क्या है? कहाँ पहुंचेंगे? बोले नहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे, जो है यही है, बस जियो, जिंदगी जियो। तो इसका मतलब है कि ना उनको संबंध क्लियर है, और क्योंकि संबंध ही क्लियर नहीं कि मैं कौन हूं और मेरा संबंध क्या है प्रकृति के साथ में, भगवान के साथ में, तो फिर ये भी क्लियर नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे करना क्या है, और फिर प्रयोजन प्राप्त क्या करना है। तो ये टोटल अंधकार है। इसलिए जो जिनको संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार के तथाकथित अध्यात्मवादी क्या करते हैं, वो आ, वो कहते हैं कि भाई हम कहीं जाना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है ना, और बस जिंदगी जियो। ये भी प्रश्न मत पूछो कि सृष्टि कैसे हुई, ये भी प्रश्न मत पूछो कि हमारा उद्देश्य क्या है, बस जिंदगी जियो, सांसें चल रही, सांसों पे ध्यान दो और कुछ नहीं। तो भाई ध्यान करना क्या है? दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। सो दिस क्लैरिटी हैज टू बी देयर। ठीक है ना? अब कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें तो ये तीनों चीजें होती है ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। मैं कौन हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, हाँ मेरे प्रोजन कौन, मेरा स्वॉट स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये संबंध ज्ञान कहलाता है। अब मुझे उस कार्य को करना कैसे है, अभिधेय। और प्राप्त क्या करना है, वो क्लैरिटी होती है ना माइंड में, मुझे ये पोजीशन अचीव करनी है, कि ये इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड प्रयोजन। तो ये जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है, इसकी क्लैरिटी ना होने के कारण अधिकतर अध्यात्मवादी खुद भी घूमते रहते हैं और दूसरे को, जनता को भी घुमाते रहते हैं।
ठीक है, समझ आया? जी, मेरा एक क्वेश्चन है, Yes. मतलब जैसे मैंने मतलब इसे प्रभुपाद के बहुत सारे मैंने इसे लेक्चर में मैंने सुना कि मतलब इसे एस्ट्रोलॉजी का मतलब इसे प्रभुपाद ने उतना मतलब इसे मान्यता नहीं दिया, लेकिन मतलब हाँ प्रभुपाद ने तो बहुत सारे मतलब इस लेक्चर में कहा है, लेकिन अभी हमने मतलब इसे जाना है कि शास्त्र में, लेकिन उसके बारे में तो मतलब इसे मान्यता है, तो इसको कैसे मतलब इसे डिफाइन करें? जैसे मान लीजिए अभी आपका घर बन गया, हाँ, आप जिस घर में रहते हैं उसमें बैम्बू का सपोर्ट दिया हुआ है क्या? छत को मतलब बैम्बू का सपोर्ट दिया हुआ है क्या, आप जिस घर में अभी रहते हैं? आप अभी कहाँ नहीं, बैठे हैं? घर में है। घर में है, तो आपके घर में क्या बैम्बू के सपोर्ट से छत खड़ी करी है? नहीं, नहीं। लेकिन जब वो बन रहा था तब तब तो था सपोर्ट। तब वैसे ही जब तक व्यक्ति प्योर डिवोटी नहीं हो गया है, 100% कृष्ण को शरणागत नहीं हो गया है, तब तक तो उसको विभिन्न प्रकार के बैम्बू को सपोर्ट लेना पड़ेगा ना। लेकिन जब हाँ, उसका सीमेंट सूख जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा तब वो सपोर्ट हटा सकता है ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जब बोला कि हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है कि और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे बोला है कि जब आप कंप्लीट शरणागत हो गए। लेकिन जब तक आप कंप्लीट शरणागत नहीं हो गए हो तो आपकी तो लिमिटेशन है ना, तब तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, हाँ, है पॉइंट ना। है। हाँ, हाँ, तो ऑफ कोर्स हमारी ओवर डिपेंडेंसी हमें नहीं रखनी है, लेकिन दिस आर दी साइंसेस दैट इज, भाई हम विभिन्न प्रकार के, जैसे वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, तो वास्तुशास्त्र एक बहुत प्रैक्टिकल विज्ञान है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सा वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, घर के बाहर क्या होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए, एक साइंस है। तो जब मान लीजिए अब आप घर बना रहे हैं तो आप वास्तुशास्त्र का कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑटोमेटिक घर है जिसको कोई वास्तुशास्त्र पहले से नहीं है, तो आपके कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन है ही नहीं तो करो हरे कृष्णा करो, और क्या कर सकते हो, तब भगवान में निर्भर हो। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट, आपके हाथ में आप घर बना रहे हो, तो वास्तु से कंसल्ट करना समस्या क्या है, वो भी तो एक विज्ञान है और वेदों में दिया हुआ विज्ञान है। जैसे हम मेटेरियल, हम मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो हम वैदिक विज्ञान को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। हम सब प्रकार के विज्ञान को यूज करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हम मोबाइल को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हम लैपटॉप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हम इंटरनेट को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हम तो हम आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा सकते। तो अगर उद्देश्य है भगवान की सेवा में लगाना तो उनको यूज करना गलत नहीं, लेकिन उद्देश्य केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, तो मोबाइल यूज करना भी गलत है ना। तो जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी कई प्लेटफॉर्म कई एंगल से बोल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी खुद का जब जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि ये ही लड़का 108 मंदिर बनाएगा, तो हाँ, है ना। तो उनके पिताजी तो शुद्ध वैष्णव थे, क्यों एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि भाई बच्चे के भाग्य के विषय में जानना अच्छा रहता है कि क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर सकता है, तो उसका क्या क्या निराकरण किया जा सकता है। या शादी होगी आपकी, अभी आप आसुरिक स्वभाव के, आपने दैविक स्वभाव की लड़की से शादी करी, दिन भर झगड़े होंगे। या आप दैविक स्वभाव के, आपने आसुरिक स्वभाव की लड़की से शादी कर ली, तो झगड़े होंगे। इसलिए कुंडली मिला करके शादी करना चाहिए। केवल सुंदर लगती है ना, और पिताजी के पास पैसा है, तो केवल ये सब उस पर देखेंगे तो जीवन में झगड़े चलेंगे। तो इसलिए तो आपके पास भविष्य दर्शन का क्या तरीका है, तो वे तो एस्ट्रोलॉजी बचता है आपके पास, कुंडली मिलाना एस्ट्रोलॉजी में, है ना। ठीक है ना। ओके, और कुछ किसी के मन में कोई जिज्ञासा इससे संबंधित? तो ये पॉइंट्स रिमेम्बर थोड़ा पढ़ लीजिए जस्ट। प्रभु जी उपासना कांड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं लेट आया था। उपासना कांड मतलब, उपासना कांड में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना की पद्धति का वर्णन है, लेकिन ये जानते हुए दिखाते हुए कि भाई सारे देवता भगवान विष्णु के अंग हैं। इन्हें अगर हम किसी भी देवता की पूजा भी करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये नारायण अंग, मतलब सब नारायण के ही अंग है, तो हम वास्तव में नारायण की ही पूजा कर रहे हैं। वेदों में ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि देवी देवता भगवान के अंश हैं, भगवान के अंग हैं। लेकिन आजकल लोग लड़ाई करते हैं कि ये देवता, हम इस देवता को मानते हैं, वो उस देवता को मानते हैं, उस देवता को मानते हैं। लेकिन वेदों में क्लैरिटी है, ये सभी देवी देवता इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब कृष्ण पर आश्रित हैं और नारायण के अंग है। नारायण के ही आदेश से उन्होंने उस पोजीशन को स्वीकार किया है और उस पोजीशन में रह के सेवा कर रहे हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र इत्यादि सब भगवान के ही अंग है, भगवान के
भगवान के जो ये हैं अंग हैं और भगवान की प्रेरणा से वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उपासना कांड के अंतर्गत ये आता है, लेकिन अल्टीमेटली सभी देवी देवताओं की उपासना से बेस्ट है भगवान विष्णु की भक्ति में लगना। तो उपासना कांड का भी कल्मिनेशन है भगवान विष्णु की। भाई जैसे सभी अंग हैं, तो अंग प्रत्यंग की अलग अलग सेवा क्यों करें? अगर पेट में भोजन पहुंचा देंगे तो सारे अंग प्रत्यंग को पोषण मिल जाएगा। अगर सभी देवी देवता उस फूल पत्ती फल या स्टेम की तरह हैं, लेकिन भगवान विष्णु है रूट की तरह, तो अगर रूट को पानी देंगे तो सबको पोषण मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर भगवान विष्णु को हम पोषित करते हैं, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा जितेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युतेज्य। अगर अच्युत की इज्जत की जाए, अच्युत की पूजा की जाए, तो क्या होगा? तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये उपासना कांड का कल्मिनेशन है, ये कंक्लूजन है। ठीक है विनाश? ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो इसको पॉइंट्स रिमेम्बर पढ़ के कंक्लूड करेंगे। कौन पढ़ेगा इसको? The Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. Second is the Vedas deal with three departments of activities. One is called Karma Kanda, or activities like it's under the Vedic injunction, which gradually purify one to understand his real position. The next is Jnana Kanda, the process of understanding the absolute truth by speculative methods. And the third is the Upasana Kanda, or worship of the Supreme Personality of Godhead, and sometimes of the demigods also. The worship of the demigods recommended in the Vedas is ordered with the understanding of the demigods' relationship to the personality of Godhead. Third is in three departments of human knowledge disseminated by the Vedas, namely fruitive work, Karma Kanda, transcendental knowledge, Jnana Kanda, and devotional service, Upasana Kanda. Devashi Narad inherited from his father Brahma devotional service, whereas Daksha inherited from his father fruitive work, and Shanaka and Sanatan, etc., inherited from their father information about Jnana Kanda or the transcendental knowledge. Fourth is, there are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches which are necessary for the common man. So the intelligent man like is generally known as the Brahmana, took up all the different branches of the Vedic knowledge to guide society. Even the department of military education, Dhanurveda, was also taken up by such intelligent men. Fifth, the Vipras are those who are expert in Karma Kanda or fruitive activities, guiding the society toward fulfilling in material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. Sixth, amongst the Karma Kanda expert, the Jataka expert Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculation of the time lagna. 7. The culmination of Upasana Kanda is the devotional service of the Lord Vishnu, and when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas are Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord, and thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas.
And as explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and its superior subject matter above the three khandas, namely Karmakanda, Jnanakanda, and Upasana. हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है अभी, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे, उसको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे